Okay, so in last class we discussed about Maggie का SWOT analysis हम लोगों ने किया था, strength, weakness, opportunity and threat, right? And we also discussed about the social responsibility of the marketing manager. Marketing manager का क्या social responsibility है? So in today's class we are going to complete the case study on Flipkart. ठीक है, Flipkart के ऊपर case study करेंगे and we will discuss some question answer, extra कुछ question answer है which is related with the product decision. So we are going to complete those questions. And one more thing, we are going to understand that what is the effect of marketing on the economy. Okay, so we are going to complete these topic today. But before starting the class, I want to know that who is going to give the answer of the social responsibility of the marketing managers. What are the various social responsibility of marketing managers? Who is going to tell me the answer of this? And one more thing, I just want to tell you that this question was information of marketing research and prepare the gather the information of marketing research and maintain the quantity and quality of the product. Very good. Sales forecasting and prepare a roadmap for advertisement and how to use the sales promotion. ठीक है. Offline online class, who is going to tell me the answer of this? What are the various social responsibility of the marketing manager? Tell me the answer. Who is going to tell me online class? Ma'am, the first one is sales forecasting. Second one is maintain the supply of goods and services to the consumer. और फिर giving employment. Generate employment, yes. Yes, and applying the sales promotion tools to attract new dealers and consumers. इतने ही आता है मैम. Okay, very good. Then we have to ensure the availability of the product and services in the market. यानी market में product और service हमेशा available रहे, ठीक है, according to the demand. ठीक है, consumer की need को fulfill हम करें, है ना? And it is their responsibility is also to basically help to increase the living standard of the people by providing the employment. वही same चीज ही होगी. So these are the basically work or these are the responsibilities. ठीक है, now सारे लोग को मैं questions कुछ बता होता है आपका. So let's start with the तो customers जो आपकी corporate social responsibility होता है. कंपनी का क्या responsibility सोसाइटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप कहीं पर भी आप सोसाइटी में कंपनी चला रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना. इसलिए महिंद्रा एंड आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ कंपनीज हैं जो बेसिकली रूरल पीपल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है इन्होंने, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना शुरू किया है. So these are the work of the corporate social responsibility and it is a work of the marketing manager to ensure these corporate social responsibility. ठीक है, so providing the proper job provide करना, सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना, एम्प्लॉइज के साथ बेटर रिलेशन बनाना, चैनल्स के साथ बेटर रिलेशंस बनाना, चैनल मेंबर्स के साथ बेटर रिलेशन बनाना, these all are the social responsibility of marketing manager. Let's start with the questions. Okay, so the first question on the screen is define the market segmentation. Define the market segmentation. What is market segmentation? Who is going to tell me about it? What is the meaning of market segmentation? Raise your hand. Yes. Dividing the market. Dividing the heterogeneous market into homogeneous market. And what are the various variables which is used for the market segmentation? What are the various variables for market segmentation? On which basis we are basically doing this segmentation work? Psychological, income, demographic, psychological, behavior, geographic types.
There are 4-5 types of this segmentation. 4 basically. One is more hybrid segmentation is also there, but we are not including it right now. But basically, we have 4 type of variables which are present. The first one is geographical, on the basis of region, territory, city, urban areas, rural areas, hilly areas, terrain. According to this, we are dividing the market. For example, which I already explained that अगर हम woolen clothes की बात करें, so अगर हम एरिया में देखें तो we are going to sell those product in the Kashmir and the north areas, not in the south, because in south ज्यादातर क्या होता है, summer होता है, right? And if we are taking the example of the sleepers, जो ज्यादातर जो ऐसे sleepers होते हैं waterproof sleepers होंगे, वो ज्यादातर कौन सी एरिया में होगा जहां पर बहुत बारिश होता है. So we are basically dividing the market on the basis of geography, right? So this is geographical. Second one is demographical. What is demographical? Where basically we are segmenting the market on the basis of income, age, gender, education, right? The third one is behavioral, psychographical. The psychological, psychographical में क्या क्या आएगा? That is related with the beliefs, personality and attitudes. ठीक है, lifestyle. And the next one is the behavioral one, where we are basically dividing the consumers or market according to the purchasing pattern, like occasional purchaser है, behavior क्या है consumer का product को खरीदने के लिए, right? So these are the market segmentation. अगर हम फिलिप कोटलर का एग्जाम्पल ले, फिलिप कोटलर जो है फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, व्हाट ही सेड अबाउट द सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? So market segmentation, it is the process of subdividing of a market into homogeneous and subsets of customer and selected market target to reach the distinct marketing mix. The same thing is like we have to segment the market, convert the heterogeneous market where the consumer's demand is different. We have to analyze what is their demand. We have to basically separate them. We have to divide them. Clear ho gaya? So this is market segmentation, and this is the part of the STP model: segmentation, targeting and positioning. Clear? Segmentation done. So जब segmentation question आया है, तो we have to discuss about the targeting as well. What is targeting? Online class. What is targeting? What is targeting? Online class. After segmenting the consumer, we choose a segment which can be our end consumer who will purchase the product or service. For example, if we choose, if we segmented the consumer into different child groups, and we target only the child group of 5 to 12 years old, so that is our target group. Exactly. So targeting is something that whom we are going to sell the product, who is our final consumer, who is our potential customer. Example में मैंने बताया था कि फास्ट ट्रैक है. दिस बेसिकली वॉच इज बेसिकली फॉर यूथ, सिर्फ यूथ के लिए ज्यादातर है, वही खरीदते भी हैं इसको, ठीक है. ओल्ड पीपल आर स्टिल रिलाई ऑन द सोनाटा एंड टाइटन एंड देन गोल्डन एंड सिल्वर वॉचेस, राइट. सो यहाँ पर टारगेट कस्टमर आपका कौन होगा, किसको प्रोडक्ट हम सेल करेंगे. बिल्कुल वेद ने सही बोला है कि वी हैव टू थिंक दैट whom we are going to sell the product, and there are 4 bases of this. Who is going to tell me? Offline class. Yes, Adiba. Very good. What is the name of the differentiated marketing? एक और नाम क्या होगा? Segmented marketing. हाँ, differentiated, it means we are basically dividing into different consumers के लिए अलग अलग market. हाँ, segmented is differentiated. Undifferentiated mass marketing, where we are selling a single product to the mass customer, consumers, right? Next, the third one is the niche marketing. What is the other name of that? Niche marketing. Very good. Concentrated marketing, यानी कि एक जहां पर हम concentrated रहेंगे to particular target consumers. एक सेगमेंट के भी अंदर में सिर्फ एक एरिया को, यानी एक लोग को niche marketing, मतलब एक सेगमेंट को, बेसिकली नॉट within the segment, it is a one segment within all the segment. जितने भी 10 segment कर रखा उसमें से एक को सिर्फ हमने choose किया. Niche marketing, right? Next one is micro. What is the name of? Local and individual. Clear? What is positioning? Online class. What is positioning? Online class. Online class.
It is the activity to create an image of the product or service in the mind of consumers. Like we position this product to a rich class, so it has a prestige thing and things like that. Very good. What are the basis on which attributes we can use this positioning? कैसे positioning कर सकते हैं हम लोग? किस किस तरीके से, मतलब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं positioning करने के? तो एडवर्टीजमेंट तो ठीक है चलो, लेकिन किस किस बेसिस पे हम पोजीशनिंग क्रिएट कर सकते हैं? हाँ हाँ, वेरी गुड. प्रोडक्ट फीचर्स, वेरी गुड. प्राइस के बेसिस पे, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब बेसिस है. पोजीशनिंग इज समथिंग वेयर बेसिकली वी आर मेकिंग द image of your product and services, about your brand. We are making the image. जैसे मैंने बताया था पतंजलि वाला, क्या image? Natural product. ठीक है. तो like we are using for positioning, what companies are doing, basically they are using the statements. Statement use करती है, jingles use करती है. ठीक है. जैसे पहले आता था सॉन्ग, याद है निरमा का, वॉशिंग पाउडर निरमा, like this. Okay, okay, done. समझ गए मैं. So this is known as jingles, जहां पर we are adding the music in the advertisement, right? तो positioning करने का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में इमेज जनरेट करना कंज्यूमर के माइंड में. ठीक है. When we are thinking about Apple status, when we are thinking about the other MI cheap phones but the better quality, right? So this is positioning, and positioning will be vary to the different consumers के लिए different क्या होगा, उनकी thinking होगी, perception अलग होगा प्रोडक्ट के लिए, इंटरप्रिटेशन जो होगा मैसेज का वो अलग होगा. इंटरप्रिटेशन इज समथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? आपने क्या मीनिंग उससे ग्रैब किया, जो भी आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह देखा. सो पोजीशनिंग किस किस बेसिस पे हो सकता है, सबको क्लियर हो गया? डन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं. ऐसे हम लोग डेली 5-5 क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन. The second one is define product and what do you mean by marketing mix? Who is going to tell me that what is product? What is product? Offline class. What is product? Product क्या होता है? Goods and services. Valuable thing, right? And one more thing, which have utility. प्रोडक्ट इज समथिंग विच हैव यूटिलिटी, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसका कोई बेनिफिट है, जिसका नीड है. अब ये चश्मे का यूटिलिटी किस चीज के लिए? आईज के लिए, राइट? सो द प्रोडक्ट हैव यूटिलिटी होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, कॉम्पोजिशन होना चाहिए, और कंज्यूमर का उसके लिए डिमांड होना चाहिए. ठीक है. And after consuming that particular product, we have to be satisfied. यानी consumer satisfy भी हो. So this is known as product. इसको क्या बोलेंगे हम? Product. Product is a combination of both things, goods and services. याद रखिएगा. ठीक है. चलिए. Next, what is the meaning of marketing mix? Online class. What is marketing mix? A marketing mix is the tools, various tools that a company uses to market their product to the end consumer. Exactly. So marketing mix is a tactics. एक tactics है किस चीज के लिए? कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए. कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई भी आप अगर जब तक कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है, जब तक आप उसका प्राइस तय नहीं करते, जब तक उस प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस नहीं जनरेट करेंगे, तब तक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं. So marketing mix is something which consists of various elements or tools which is utilized in the marketing firm. ठीक है, which is utilized in the marketing firm to satisfy the needs of the customers, providing them goods and services. But what are the 4 P's? Marketing mix में क्या होते हैं? 4 P's. कौन-कौन है 4 P's? Exactly. And the other 3 P's which is included? Physical evidence and process. ठीक है. Okay, so what is the meaning of product and what is the meaning of marketing mix? Clear हो गया? Done? Okay. Next, what is market segmentation? Difference between market segmentation and product differentiation. Market segmentation और product differentiation क्या होता है?
Market segmentation is for the customer and product differentiation for For the product. ठीक है, जिसमें हम बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो क्या करते हैं, हम लार्ज मार्केट के लिए कुछ भी बनाते हैं. ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन वेयर वी आर बेसिकली कंसंट्रेटेड टुवर्ड द लिमिटेड एरिया और मार्केट. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the need of the promotional activities? What is the need of the promotional activities? Promotional activities करने का क्यों जरूरत है? Why? promote the goods and services to the customer and create the awareness about the product. Good. Next. Sales. Yes. Online class. Competition, because of the competition with various products. Okay. So basically, what is the meaning of promotion here? Promotion is something where we are communicating with the consumers. किसके साथ हम communicate कर रहे हैं? Consumers के साथ. What is the meaning of promotion? Promotion का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब हम communicate कैसे करें, कहाँ पर? कंज्यूमर से. ठीक है, कौन communicate करेगा? कंपनी कंज्यूमर से. प्रमोट करना, कोई चीज के बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस करना, कम्युनिकेशन करना, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन में सब बेसिकली प्रमोशन का पार्ट कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन का पार्ट है प्रमोशन, याद रखिएगा. लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन रेज होता है प्रमोशन मिक्स क्या है, कम्युनिकेशन मिक्स क्या है, आंसर विल बी सेम, प्रमोशन मिक्स में भी एंड कम्युनिकेशन मिक्स में भी. ठीक है, सो प्रमोशन की क्यों जरूरत होती है? व्हाई प्रमोशन इज रिक्वायर्ड? प्रमोशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम आज घर पे बैठे हैं, ठीक है, we have no knowledge that what kind of products are basically the other companies are making, कौन से products companies बना रही हैं. So when we are not able to get the information of that, when we are not aware about the product and services, we have no knowledge about their existence, कि वो present भी है. So promotion is something where basically the message is given by the marketers or company to the consumer. Consumer तक finally message पहुंचेगा. मैसेज पहुंचेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा. ठीक है, कंज्यूमर जो है वो जानेंगे कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या हो रहे हैं, अवेलेबल हो गए. ठीक है, और एक और चीज, प्रमोशन के थ्रू हम सेल्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं. इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है अगर हमारे पास है तो डिस्काउंट के थ्रू भी प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं. पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन यूज द डिफरेंट एलिमेंट फॉर डूइंग द प्रमोशन वर्क. प्रमोशनल वर्क के लिए वी कैन यूज द डिफरेंट टेक्निक्स. सो दीज आर दिस इज मतलब ये रीजंस है आपके प्रमोशन का. प्रमोशन का बेसिक रीजन अवेयरनेस, नॉलेज, कंपटीशन, ये सारे बेसिक इसके नीड्स है. प्रमोशन की जरूरत इसीलिए. क्लियर हो गया सबको? एवरीवन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the need of promotional activities? Clear हो गया सबको? Next question. What is direct distribution channel? What is direct distribution channel? क्या होता है direct distribution channel? The product and services directly delivered to the final consumer. बोलिए. And their product and services directly convey and distributed to ultimate customer or final consumer. That is direct marketing. Direct marketing. They are direct distribution. Direct distribution channel. Okay. Yes. Next, Adiba. चलो बताओ. What is direct distribution? What is direct distribution channel? Wholesalers. Okay. Online class. What is this direct distribution channel? Ma'am, when company sells goods to sells product to the direct customer without any intermediaries. Yes, wait. Next. Same answer. Where basically companies are not using the intermediaries, where the companies are not using intermediaries to sell the product.
sell the product to the final consumer. लाइक एग्जाम्पल में बीच में कौन कौन से इंटरमीडियरीज होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, और एजेंट्स भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं, राइट. सो दीज आर द इंटरमीडियरीज. ये किसके विद इन होते हैं? बेसिकली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के विद इन, राइट, फाइनल कंज्यूमर के विद इन. तो हाँ बिल्कुल जीरो लेवल हुआ. और एक चीज और कि ज्यादातर जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूज्ड बाय द ऑनलाइन चैनल, या ऑनलाइन जो आपकी जो मार्केटिंग हो रही है आजकल, सेलिंग हो रहा है प्रोडक्ट, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है डायरेक्ट मार्केट, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का. क्लियर है? अभी जैसे कुछ आपके फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया और अमेजोन हो गया, वो अपने ब्रांड्स को भी डायरेक्टली सेल कर रहे हैं ऑनलाइन. अमेजोन मिक्स MYX करके उनके ब्रांड्स आ रहे हैं कपड़ों के. ठीक है. एक और चीज है कि हाँ दैट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कंपनीज प्रोडक्ट सेल करती है. तो वी कैन से या इट इज अ मीडिएटर, बट समटाइम्स आपकी जो W और बीबा ये सब जो कंपनीज है इनके खुद के क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हैं. तो अपने आउटलेट्स के थ्रू भी अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट को सेल करिए ना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेल और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर हो गया सबको? एवरीवन. नेक्स्ट, व्हाट आर द, और किस किस मेथड्स के थ्रू दे आर यूजिंग द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे कर सकती है. ठीक है. डायरेक्ट मेल कर सकती है, कंज्यूमर को डायरेक्ट मेल करके बेसिकली, एक मिनट, व्हाट आर द मेथड्स विच आर यूज्ड, कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज होते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो वी कैन यूज द डायरेक्ट मेल अप्रोच. डायरेक्टली मेल के थ्रू भी हम सेल करवा सकते हैं प्रोडक्ट, मेल के थ्रू. जैसे आप लोग ये भी देखते होंगे, जैसे आपने कभी एडिडास से शूज लिया, उसके पर्टिकुलर ऑथराइज आउटलेट से या कंपनी के आउटलेट से, दे आर सेंडिंग यू मैसेज अगेन अगेन, मेल करते हैं. कई बार कंपनीज जो होती है बाय द वेरियस ब्राउजर्स और कुकीज, वो आपके एड्रेस, ईमेल एड्रेस को लेकर के दे आर सेंडिंग द मेल. सो सेंडिंग डायरेक्ट मेल दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर हो गया? सेकेंड है बाय मेल ऑर्डर्स. वही हुआ, बाय मेल ऑर्डर्स. बाय ओन सेल शॉप्स, यानी अपने शॉप्स के थ्रू कंपनी अपना खुद का शॉप्स ओपन करेगी और फिर सेल करेगी प्रोडक्ट को. ठीक है. और इसमें आउटलेट जो मैंने बताया था, बाटा फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री आउटलेट जो है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सेल कराएगी, पर्सनल सेलिंग भी कर सकती है बेसिकली. ठीक है. और बाय टेलीफोन, बाय टेलीफोन, टेलीफोन के थ्रू भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करती है. सो दीज ऑल आर द वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स बाय द मैन्युफैक्चरर और कंपनी. क्लियर हो गया? पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके. और ये स्ट्रैटेजी देखो कई बार, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज हैं वो क्यों यूज करती हैं, देखो कई बार बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. ठीक है. अब उनको पता है कि दे कैन नॉट एबल टू, बेसिकली उनके पास इतना एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट नहीं है बेयर करने के लिए, तो दे आर ट्राइंग टू बेसिकली रीच डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. ठीक है. नेक्स्ट, अगर वही मार्केट लार्ज हो जाएगा तो मे बी इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू यूज द मीडिएटर. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. What do you understand by product item? Product item का मतलब क्या होता है? What is the meaning of product item? So it is a detailed description. Detailed description का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन होगा किस चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मिलेगा. इन द मैन्युफैक्चरर लिस्ट दैट इज प्रोडक्ट आइटम. ठीक है. प्रोडक्ट आइटम क्या क्या आ सकता है? जैसे जॉनसन जॉनसन, क्लियर एंड क्लियर मॉइस्चराइजर, ये सारे प्रोडक्ट आइटम हो, मतलब प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के पास. प्रोडक्ट आइटम. व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट लाइन? अब प्रोडक्ट लाइन मुझे कोई बताएगा ऑफलाइन क्लास, कौन है? बताओ प्रोडक्ट लाइन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन? ऑफलाइन क्लास, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन? A group of similar products which can be sold to same kind of customers who have the product line. Okay. Online class. Online class. What is product line? Ved? Different products sold under one brand name is called product line. Like Exactly. Cadbury sold selling different type of chocolates under one brand.
सी इट एक ग्रुप है प्रोडक्ट्स का विच इज क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, उनके फंक्शन सिमिलर होते हैं एंड दे सोल्ड अंडर द सेम कस्टमर ग्रुप, तो दैट इज बेसिकली इन द डिफरेंट रेंजेस। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या है बेटा, जो आपने बताया ना वेद, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन इज समथिंग, प्रोडक्ट लाइन में क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन लेंथ है एक प्रोडक्ट मिक्स विड्थ होता है। तो प्रोडक्ट लाइन लेंथ में क्या होगा कि सेम टाइप के प्रोडक्ट अगर सेम कैटेगरी में फॉल करेगा, जैसे मैंने बताया था बाथिंग सोप में L'Oreal, Dove, these all are the same product, right, in a single product line. When we are talking about the product mix width, it means that a company is dealing with how many type of products, like beverages हैं, ठीक है, washing powder हो गया, ठीक है, chocolates हो गए या फिर snacks हो गया, so all these things are product mix width. Now जैसे एक और चीज भी है, अमूल का जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें, अरे एक मिनट, इन्होंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइन लेंथ और प्रोडक्ट मिक्स विड्थ जो है वो तो क्लियर हो गया सबको। प्रोडक्ट लाइन में यहाँ पर इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन किया है जो बेसिकली यही है कि आप कितने सारे प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, यानी एक टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट कितने हैं। तो यहाँ पर घी, बटर, चीज ये एग्जाम्पल दिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है आंसर कंफ्यूज मत होना। प्रोडक्ट लाइन में और प्रोडक्ट मिक्स विड्थ में, एक मिनट, हाँ, ये प्रोडक्ट लाइन जो है, दिस इज प्रोडक्ट लाइन, जब एक सिमिलर प्रोडक्ट लाइन लेंथ, एंड दिस इज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, जब यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ हम डील करते हैं। अब प्रोडक्ट लाइन में जैसे एक तरीके के भी प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके, जैसे मैंने बाथिंग सोप में बताया था, डव हो गया ये, वैसे ही अगर मान लीजिए इनका एक मिल्क प्रोडक्ट है अगर, तो उसमें जैसे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, घी वगैरह आ जाएगा। तो समथिंग वेयर बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ में, लेकिन जो प्रोडक्ट लाइन होगा कि एक ही टाइप के कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट आएंगे, इन वन कैटेगरी जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो सारे प्रोडक्ट लाइन होंगे, कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। चॉकलेट्स हैं तो उसमें आपके मिल्क चॉकलेट्स भी आ रहे हैं, डार्क चॉकलेट्स भी आ रहे हैं ना, सो दीज ऑल आर इन द सेम प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, रुको। जैसे कि यहाँ पर आप देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ डील करता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर बाथिंग सोप है, यहाँ पर बेवरेज है, यहाँ वॉशिंग पाउडर है, ठीक है, यहाँ पर स्नैक्स है, तो ये जो इनके होंगे ये सारे क्या है, एक्चुअल में दीज आर प्रोडक्ट लाइन, दीज आर पीएल, प्रोडक्ट लाइन। लेकिन प्रोडक्ट लाइन लेंथ का मतलब क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, जैसे मान लीजिए बाथिंग सोप में डव है, L'Oreal है, लाइफबॉय है, तो ये सारा आपका प्रोडक्ट लाइन लेंथ होगा, यानी प्रोडक्ट लाइन का लेंथ बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स विड्थ का मतलब क्या होगा कि जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। अब जैसे यहाँ पर ये क्या चीज में डील कर रहे थे, बाथिंग सोप, स्नैक्स मान लो, फिर वॉशिंग पाउडर, बेवरेजेस, अब इन लोगों ने क्लोथ्स को भी एक अपना एक इंक्रीज कर दिया, तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स, यानी प्रोडक्ट मिक्स यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जब इंक्रीज हो रहा है तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। और प्रोडक्ट लाइन लेंथ तब इंक्रीज होगा जब प्रोडक्ट नए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे। डेप्थ भी इस मतलब इसी से थोड़ा रिलेटेड है, जब नंबर ऑफ, हाँ बोलो, मतलब सेम काइंड का प्रोडक्ट मतलब बढ़ता है, हाँ, इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा उतना प्रोडक्ट लाइन में लेते हैं प्रोडक्ट का पार्ट है, हाँ, उसमें भी एक्सट्रीम अगर बढ़ रहा है, डव में भी 10 क्वालिटी बढ़ रहा है, मॉइस्चराइजर एंड ऑल, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट डेप्थ। उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो क्या होता है बताओ। प्रोडक्ट फ्लैंकिंग इज देयर, देखो प्रोडक्ट डेप्थ जो होता है, एक ही प्रोडक्ट के अंडर में बहुत सारे, जैसे कोलगेट में 10 आ गए वैरायटी, वो तो डेप्थ हुआ। प्रोडक्ट लाइन का मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ लाइंस है। प्रोडक्ट मिक्स विड्थ हुआ जब वो लाइन इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रोडक्ट लाइन लेंथ हुआ जब एक ही प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये है प्रोडक्ट लाइन लेंथ, इसको कंफ्यूज मत हो, ये बहुत इजी टर्म है, ठीक है।
अब बाकी डिफरेंसेस की अगर बात कर रहे हो, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में वही होगा कि कितने तरीके के प्रोडक्ट लाइन या कितने तरीके के प्रोडक्ट जो हैं बेसिकली ऑफर कर रही है कंपनी, जैसे वॉशिंग पाउडर, बेवरेज, दिस इज प्रोडक्ट मिक्स। क्लियर? प्रोडक्ट लाइन जो है, प्रोडक्ट लाइन का पूरा लेंथ जो है, प्रोडक्ट लाइन जो होगा वो इस तरीके से होगा। देखो प्रोडक्ट लाइन जो होगा वो ये होगा, जैसे उसमें 12 लेंथ है। हाँ, हर 12 मतलब 5 लाइन और 12 हाँ, तो 12 वाला जोड़ देंगे। और ये आपका प्रोडक्ट विड्थ हो गया। जैसे कि मान लो कि ये हो गया आपका 5 का लाइन। हाँ, ये हो गया 5 कैटेगरी प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन में कितने हैं? ये प्रोडक्ट लाइन लेंथ 10 ले सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए, so product mix is the full number of product the companies are offering to the consumers, the number of products they are offering to the consumers, the total number, ठीक है, total number of the product which is offered by the company, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पतंजलि में 4600 प्रोडक्ट्स है, कितने ये सॉरी 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 4600 तो उनके आउटलेट्स हैं, तो 400 से ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स हैं, तो दिस इज प्रोडक्ट मिक्स। मोर देन मतलब 400 प्रोडक्ट्स दे हैव। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लाइन, मतलब एक सिमिलर कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट मिक्स, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग। और प्रोडक्ट मिक्स विड्थ जो है ना, वो जितना आप नंबर ऑफ कैटेगरीज बढ़ाते जाओगे वो इंक्रीज होगा। ऐसे एक ही कैटेगरी में जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाते जाओगे तो प्रोडक्ट लाइन लेंथ इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट लाइन लेंथ में कैटेगरी विल बी सेम, प्रोडक्ट लाइन लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, सो व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, ये क्लियर हो गया। व्हाट इज लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, यहां से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम चलते हैं फ्लिपकार्ट की ओर, ठीक है। और ये जो मैंने टॉपिक आज कराया है, बिकॉज थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आप लोग को है, तो इसीलिए इस टॉपिक को, तो फ्लिपकार्ट वाज स्टार्टेड बाय द 2 IITian, 2 IITian थे आपके, बिन्नी बंसल थे और एक और कौन बंसल है, सचिन बंसल, वेरी गुड। So Binny Bansal and Sachin Bansal, they were 2 IITians who started the Flipkart. जो फ्लिपकार्ट है जब वो शुरू हुआ था तो दे स्टार्टेड ओनली विद द 4 लाख रुपीज, सिर्फ 4 लाख रुपए से इसको शुरू किया गया। एंड आज वन ऑफ Amazon के बाद इसका बेसिकली नंबर आता है इन द सेलिंग द प्रोडक्ट। एंड अर्लियर इट वाज स्टार्टेड विद द सेलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इन्होंने पहले शुरुआत जो किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सेल करने से शुरू किया था। बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आई, फ्लिपकार्ट को भारी लॉस हुआ, बट आफ्टर दैट इट वाज विल बी इन द सेम पेस, वापस से सेम सिचुएशन में आ गई, मतलब वापस से सिचुएशन ठीक हो गया। इसका थोड़ा सा हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे कि ये प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं, एंड द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में वीकनेस तो आई गेस सब लोग को पता होगा, क्या वीकनेस हो सकता है, कंपटीशन है ना, कंपटीशन एंड ऑल। चलिए, तो हम इसका कुछ पॉइंट्स देखते हैं। स्ट्रैटेजी ऑफ फ्लिपकार्ट, सो इट इज अ लीडिंग जायंट ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस, लीडिंग अभी है ये। और इसका भी लगभग कितने लोग हैं पता है, इसमें 7.5 करोड़ लोग जो हैं इसके अभी यूजर हैं, 7.5 करोड़ आर यूजिंग फ्लिपकार्ट। और अगर मैं बात करूं कि इसका जो बिग बिलियन डे वाला इनिशिएटिव है, जो सेल्स प्रमोशन है, वो नॉर्मल रिटेलर से 20 गुना ज्यादा, जब ये बिग बिलियन डे लाते हैं ना, तो उससे ज्यादा इनका प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ आल्सो दैट इट्स बिग बिलियन डे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या था कि दे आर यूजिंग द सेल्स प्रमोशन अलॉट। बिग बिलियन डे के नाम से ये हमेशा प्रोडक्ट को लाते हैं विद द हेवी डिस्काउंट, ओके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेगमेंटेशन वगैरह का, तो दे आर यूजिंग द साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल वन, ठीक है। And they are basically focusing on the need of the customers, and whatever new product is arising in the market, they are started selling those product as well. So बहुत fastly they are basically capturing the market with this initiative, ठीक है। They are basically always change themselves according to the changes of the needs and demand of the customer. जैसे जैसे need और demand बदलेगा, वैसे वैसे नए नए product you will easily able to see. The Flipkart is also used for the launching of so many mobile phone as well, right?
अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो दे आर ऑल्सो डिलीवर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफी एज वेल. दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द चीप प्राइस टू द हाई प्राइस प्रोडक्ट. ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एंड दैट इज अवेलेबल फॉर एवरी ईच जेंडर ग्रुप. हर एक जेंडर, मेल फीमेल, सबके लिए अवेलेबल है. ग्रुप एज वाइज देखें तो ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए भी इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. ठीक है. पोजीशनिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट इज अ, मतलब एक कह सकते हैं फ्रेंडली ई कॉमर्स ब्रांड है एंड दे आर यूजिंग अ मिशन दैट अब हर विश होगी पूरी. क्लियर है ना? अब हर विश होगी पूरी. और अगर हम इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करें फ्लिपकार्ट की, तो दे हैव अक्वायर्ड, बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने एक्वायर किया है. कौन कौन को? दे हैव एक्वायर्ड कंपनीज लाइक मिंत्रा. मिंत्रा को भी एक्वायर कर लिया इसने? नहीं, दे डजंट एक्वायर्ड मिंत्रा. जेबोंग को तो आई गेस जेबोंग को किसी ने तो कंपनी ने एक्वायर किया है. एंड कुछ और भी है, कुछ chakpak.com, कुछ इस तरह की कंपनीज है दे एक्वायर्ड. ठीक है. सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए रिनाउंड है. अभी हाल फिलहाल में इन्होंने क्लोथ्स वगैरह को भी स्टार्ट किया है सेल करना. हाँ, उसके बाद फिर ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह भी सेल, मतलब वो कपड़े वपड़े भी सेल कर रहे हैं. एंड अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अभी फिलहाल अगर हम नॉर्मल बाकी के कॉम्पिटिटर से देखें तो इनको बेनिफिट्स, ठीक है, इनका बेनिफिशियल स्टेज सही है, बट नॉट मोर देन Amazon. सो Amazon इज इट्स बिग कॉम्पिटिटर. सो ये बहुत शॉर्टकट में आई एक्सप्लेन अबाउट द फ्लिपकार्ट. एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? ऑनलाइन क्लास? No, ma'am. No, ma'am. So